Good morning, dear students. In the last class, we have studied the introduction of the poet Sir Walter Scott and brief summary of the poem Patriotism. Today, we will go for the explanation of different stanzas of the poem. So, let us begin with the first stanza. Breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land," whose heart hath ne'er within him burnt, as home his footsteps he hath turned, from wandering on a foreign strand. So we will go for the first line now. So in this line, the poet wants to tell us that the poet talks about the patriotic feeling of a man in this line. So the poet says, breathes there. Breathes means take air in. A person who takes air in means a person who is alive. There the man with soul so dead. It is difficult to find out whose soul is dead, who has no love for his native land. Native land means his motherland. What the meaning of the native land? Motherland. तो पोइट पहली पंक्ति में ये कहता है कि इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो जीवित है और अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को सर्च कर पाना बड़ा मुश्किल है, या ऐसा व्यक्ति बड़ा डिफिकल्ट है जिसकी आत्मा क्या है? मरी हुई है. द मैन विथ सोल सो डेड. व्हाट द मीनिंग ऑफ द लाइन द मैन विथ सोल सो dead? It means that the poem means that there is hardly any living man with a soul without the feeling of patriotism. There is hardly any man in this world without the feeling of patriotism. कवि कहता है कि इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल से मिल पाता है कि जिसके हार्ट में क्या नहीं है? पैट्रियोटिज्म नहीं, अर्थात देशभक्ति नहीं है. Who never to himself has said, and it is also difficult. उसने ये कहा है कि ये भी डिफिकल्ट है जिसने कभी ये नहीं कहा है अपने देश के लिए, दिस इज माई ओन, माई नेटिव लैंड, दिस इज माई ओन, इट बिलोंग्स टू मी, और दिस इज माई मदरलैंड. इट इज डिफिकल्ट. तो पोइट यहाँ पर सो डेड किसको कहता है? ऐसे व्यक्ति को पोइट यहाँ पर डेड घोषित करता है, मृत घोषित करता है. किसको? Who has no love for his native land, जो कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है. ब्रिथ मतलब जीवित तो है, लेकिन किससे मरा हुआ है वो? सोल से, आत्मा से. वो व्यक्ति जीवित है लेकिन आत्मा से वो मरा हुआ है, जो व्यक्ति अपने देश, अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है. उसके आगे फिर क्या कहता है? Whose heart hath never within him burned, उसके हृदय में ऐसी बात उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात मातृभूमि के प्रति प्रेम, पेट्रियोटिज्म उसमें नहीं है. As home his footstep he has turned, from wandering on a foreign strand. Foreign strand means foreign boundary. A person who returned from foreign country and put step means keep his foot on his motherland, and who has never said, this is my own land, this is my motherland. ऐसा व्यक्ति जो विदेश में घूम करके या विदेश में समय बिता करके वापस आया है और अपने देश में आने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता कि दिस इज़ माई ओन लैंड, माई नेटिव लैंड, तो ये उसका हृदय कैसा है? ही इज डेड बाय सोल. और फिर क्या कहता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एनी पर्सन like who has never said this is my own land, this is my motherland. It means it is difficult to find out an unpatriotic person. एक ऐसा व्यक्ति जो पैट्रियोटिक नहीं है उसको सर्च करना बड़ी डिफिकल्ट बात है. लेकिन फिर भी if such there breathe means alive. If such there breathe, if anyone person who is alive, who is unpatriotic, go mark him well. Go and mark him well. Mark him well means identifying him well. उसको जाओ और उसको अच्छे से क्या करो? आइडेंटिफाई करो. तो मार्क वेल करना उसको चाहिए. If such there breathe, go mark him well. It means
The poet says that if there is any, mark him well, for he doesn't deserve any praise. इसमें कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे ठीक से परखो, क्योंकि वह किसी की भी प्रशंसा पाने के योग्य नहीं है. He doesn't deserve any praise or appreciation. High though his titles, proud his name, boundless his wealth as wish can claim. The poet says he may be a man with high title or name, with boundless possessions and high wishes. कवि कहता है कि वह व्यक्ति अपार संपत्ति के वाला हो सकता है, उसका जो पोस्ट है, उसका जो नेम है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, और हाई विशेष मीन्स वह उच्च आकांक्षाओं वाला भी हो सकता है. लेकिन डिस्पाइट दोज टाइटल्स, पावर एंड पेल्प, द रेज कंसंट्रेट ऑल इन सेल्फ. ही, एज द पोइट सेज, इज ए रिच एंड सेल्फिश. इट मीन्स कवि कहता है कि वो व्यक्ति ऊंचे टाइटल्स वाला है, पावर वाला है, मनी वाला है, लेकिन वो उसकी नज़र में क्या है, एक दरिद्र है. और कंसंट्रेट ऑल इन सेल्फ मीन्स ही इज ए सेल्फिश, वह एक स्वार्थी व्यक्ति है. लिविंग सेल forfeit fair renown, and doubly die shall go down to the wild dust from whence he sprung, unwept, unhonored, and unsung. He, as the poet says, is a wretch and selfish. While living, he shall lose all his comfort and riches, and after his death, there will be no mourning for him. जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में उसे कोई भी याद नहीं करेगा. He will die quite unnoticed. और वह जब उसकी मृत्यु होगी तो वो कैसा होगा, unnoticed, अर्थात उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देगा. He is a doubly dying. वह दोहरी मृत्यु को प्राप्त करने वाला, वह डबल मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा. द पोइट मीन्स टू से दैट ए मैन विदाउट पैट्रियोटिक फीलिंग इज ऑलमोस्ट डेड. जो व्यक्ति जिसमें देशभक्ति की भावना नहीं होती है, पैट्रियोटिज्म नहीं होता है, वह लगभग पहले से ही मरा हुआ होता है. एंड आफ्टर हिज रियल डेथ नो वन रिमेंबर्स हिम. और उसकी वास्तविक मृत्यु के बाद में उसे कोई याद नहीं करता है, अर्थात कोई उसको रेस्पेक्ट नहीं देता है. इट इज़ अनदर डेथ, ये उसकी दूसरी मृत्यु होती है. द पोइट कंक्लूड्स दैट द पर्सन हु डजंट लव हिज कंट्री विल डाई ए डेथ ऑफ इग्नोमिनी. और कवि लास्ट में हमारे को कंक्लूजन देता है, निष्कर्ष देता है कि वह व्यक्ति जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वो इग्नोमिनी की ज़िंदगी में ही उसकी क्या होता है, डेथ हो जाता है. इग्नोमिनी मीन्स क्या होता है, गुमनाम जिंदगी. इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, गुमनाम जिंदगी. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. नाउ आई विल सेंड ए PDF to you for the question answer of this chapter. Thank you very much once again.